Cameras on. Okay, let me share the screen. Okay, तो मैं अभी तक ये कह रहा था, आई होप तुम इसको समझ लो. ओके, मैं ये कह रहा था, मैंने लिया था होम एक्स वाई, ये तुम्हें पता ही है. It is all mappings from t x to y such that t is linear. फिर मैंने इसकी एक सब स्पेस देखी. Of course, here x and y are normal linear spaces over some field k. तो फिर हमने इसकी एक सब स्पेस देखी bxy, which is a subspace of home xy. उसमें क्या था? bxy was defined as all mappings from t x to y, है ना, such that t is linear and continuous. और continuity से मतलब जो कि हमने देखा, continuity is equivalent to the condition norm of t of x is less than equal to k times norm of x for all x belonging to x and some k positive. Some k positive. So this was a vector space. और फिर हमने देखा इस पे ये चीज एग्जिस्ट करती है एज अ नॉन नेगेटिव नंबर फॉर ईच t belonging to pxy. Then I can define this to be my norm of t is equal to supremum norm x less than equal to 1 norm of tx. क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है बिकॉज ये सेट बाउंडेड होता है. When I restrict the vectors whose length is less than equal to 1, whose norm is less than equal to 1, because of this condition, ये हमें मिलता है. Now the question is, does this define a norm? पहली प्रॉपर्टी तो ओके लगती है क्योंकि इट इज क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है. दूसरी, अगर नॉर्म ऑफ टी 0 है, उसका मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट सुप्रीमम ओवर x लेस देन इक्वल टू 1 norm of t of x is equal to 0. ठीक है ना. अगर सुप्रीमम है नॉन नेगेटिव नंबर्स का 0, इट इंप्लाइज दैट t of x is equal to 0 for all x with norm x less than equal to 1, which is equivalent to saying that t of x by norm x is equal to 0 for all 0 not equal to x belonging to x. ठीक है ना. क्योंकि इसका नॉर्म जो अंदर है इसका भी नॉर्म 1 है, तो ऊपर वाली कंडीशन से वो आ जाएगा. which is equivalent, या मैं यहां लिख रहा हूं, which is equivalent to saying that t of x is equal to 0 for, क्योंकि ये लीनियर है तो ये बाहर आ जाएगा, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्म x से एंड वी आर डन. for 0 not equal to x belonging to x. बट साथ में ये तो होता ही है, t of 0 तो 0 होता ही है because t is linear. Since t is linear, उसका मतलब ये हुआ t of x is equal to 0 for all x belonging to x, यानी t is the additive identity, it is the zero map. तो पहली प्रॉपर्टी डन. अब दूसरी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एंड वो तो इससे भी ज्यादा इजी है. वो इस तरह से, नाउ नॉर्म ऑफ t1 प्लस t2, जो फंक्शन नॉर्म है या ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्म, is the same thing as supremum over norm x less than equal to 1 norm of t1 plus t2 applied to x. But this is the same thing as supremum norm of x less than equal to 1 norm of t1 of x plus t2 of x. Now using the triangle inequality of this thing, this is less than equal to supremum norm x less than equal to 1 ब्रैकेट में norm of t1 of x plus norm of t2 of x. Okay,
नाउ बट दिस इज लेस देन इक्वल टू, जैसा कि इससे पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब ऐसी सिचुएशन हो, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस थिंग प्लस सुप्रीमम over norm x is less than equal to 1 norm of t2 of x. Okay, which is nothing but norm of t1 plus norm of t2. Very easy. यानी ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी आ गई और ये भी इस होमोजेनिटी की norm of alpha t of x. Now this is true for all t1 t2 belonging to pxy. Alpha t1 of x. Now this is again supremum. Easy है ये प्रूव करना, एक्चुअली ये norm है. Okay, this is equal to, what should I do? Is norm of alpha t1 applied to x, right? Which is equal to supremum norm x less than equal to 1. Easy है वैसे, alpha into t1 of x using the properties of the norm. This would be supremum norm x less than equal to 1 क्योंकि already norm है. अब चूंकि अल्फा का सुप्रीमम के साथ कोई कनेक्शन नहीं, सुप्रीमम इजी है वैसे तो, फिर भी okay, so that's equal to modulus of alpha into norm of t. So we have shown that, अब हम कहाँ पहुंचे? We have shown that bxy is a normed linear space with respect to the norm of t is equal to the supremum over the unit closed ball, हम ऐसे इसको कहते हैं, of t of x. So ये अपना norm है. लेकिन actually I can also show that this supremum norm x less than equal to 1 norm of t of x is the same as supremum norm x is equal to 1 norm of tx. तो इसको चलो मैं यहाँ छोटा सा प्रूव करता हूँ कि ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि फिर मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर है, पहली बात तो ये है कि सुप्रीमम norm of tx norm x equal to 1 is less than or equal to supremum over norm x less than equal to 1 norm of t of x. Why would be this the true? इसको मैं लिखूंगा क्लियरली क्योंकि ये ऑब्वियस है. ऐसा क्यों होगा? देखो यहाँ पे जो x सर वो कंटेन कर रहे हैं ना, बिल्कुल सुप्रीमम ऑफ ओवर ए बिगर सेट इज बिगर, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा सेट का सुप्रीमम है, ये सेट इसमें कंटेन्ड है, तो जो ज्यादा बड़े सेट का सबसे बड़ा होगा वो छोटे सेट के सबसे बड़े से बड़ा ही हो, मतलब इस तरह से. अब इसका उल्टा दिखाते हैं. now suppose norm x is less than equal to 1. It would imply that norm of t of x is less than equal to, should I write it like this? चलो मैं रबर से करता हूँ. अब मैं उल्टा दिखाना चाहूँ, मैं देखूंगा ये इससे लेस देन इक्वल टू है, फिर दोनों बराबर. So it means that norm of t into norm of x, we write it less than equal, नहीं ऐसे नहीं गलत हो गया, ऐसे में लिखूंगा. norm of t of x, ऐसे अगर मैं लिखूं into 1 by norm x, क्या मैं लिख सकता हूँ this is greater than equal to norm of t of x? चलो मैं ऐसे बजाय इसको यहां ले आता हूं. क्या अब ये ठीक है? देखो ये लेस देन इक्वल टू 1 है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी नंबर से तो वो छोटा ही हो जाएगा ना, है ना? इज दिस क्लियर? हाँ, चलो मैं इसको चलो ऐसे लिखता हूं अगर तुम्हें दिक्कत है तो.
ये एक ही बात है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि norm of t of x is less than equal to norm of t of x by norm x. I have used it कि मैंने इसको यहाँ लाया, फिर norm के अंदर ले गया, फिर चूंकि t लीनियर है तो उसको इसके अंदर। So इससे मुझे मिला for x, for norm x less than equal to 1, norm of t of x is less than equal to norm of t of x by norm x. अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि x should not be 0, है ना, of course, and x not equal to 0, क्योंकि x equal to 0 के लिए तो ट्रिवियल है ना, ये 0 है तो इससे छोटा ही होगा. Okay, but this is less than equal to supremum norm x equal to 1 norm of tx, क्योंकि ये जो अंदर वेक्टर बैठा है ना, इसका नॉर्म 1 है, तो ये अपने सुप्रीमम से तो छोटा ही होगा. आई होप यू गेट इट. और चूंकि सभी के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीमम norm x less than equal to 1 norm of t of x is less than equal to supremum norm x equal to 1 norm of t of x. Now अब तुम इसको कंबाइन कर लो, ये और ये, इससे हमें मिलेगा व्हाट, हाँ, इससे हमें मिलेगा norm of t can be written as supremum norm x less than equal to 1 norm of t of x, or I can just use that supremum on just the boundary of the unit circle. Okay, तो यहां तक हम पहुंच गए. अब फर्दर मोर मैं कुछ और लिखना चाहूँ. Now if t belongs to bx, t belongs to bxy, हमारे पास कंडीशन है t of x is less than equal to some k times norm of x for all x belonging to x, or I can say t of x by norm x using the same thing जो मैंने अभी किया is less than equal to k for x not equal to 0. अब 0 के लिए ऑब्वियस है, 0 को मैं इसलिए जरूरत नहीं है देखने की क्योंकि 0 के लिए तो ये ऑब्वियस है. तो ये सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन अभी बता दो, कोई कंफ्यूजन है? अरे बता दो. हाँ, ठीक है सर. ओके, ठीक है सर. गुड गुड. अब अगर ये है तो क्या, देखो अब जो है, चलो मैं ऐसे लिख सकता हूं, चलो बजाय इसके मैं लिखूंगा नाउ टी जो है नॉर्म ऑफ टी, या ऐसे सोचो तुम, ऐसे अगर हम सोचें कि जो k है उससे बड़ा अगर कोई नंबर होगा ना तो वो भी इसका अपर बाउंड होगा, यानी दिस इज लेस देन k डैश फॉर ऑल k, या इसको मैं k लिखता हूं, चलो दिस इज, मतलब चलो इसको k डैश रखते हैं, वेयर k डैश इज अ पॉजिटिव नंबर, बट दिस इज आल्सो ट्रू फॉर ऑल k ग्रेटर देन k डैश. बिल्कुल. अब अगर मैं करूं, अब ये जो सेट है ना, अगर मैं लूं ये k such that k is greater than k dash with norm of t of x less than equal to k times k dash times norm of x for all x belonging to x and k dash positive. तो ये जो सेट है it is bounded below, it's a set of non-negative real numbers, so it is bounded below. So इस सेट का एक इनफिमम होगा. अब मान लो तुम्हारे पास सिचुएशन ये है कि t of x, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, is less than equal to some k for all x belonging to for all norm x, norm x less than equal to 1, that's better, मैं इस तरह से लिखता हूँ because इसका सुप्रीमम है, वो सब कुछ हमें पता है. तो कहने का मतलब ये कि यूं समझ लो, यहाँ पे मान लो t एक्सिस हैं नॉर्म में,
वायर, ये कोई रियल नंबर्स है ना, तो रियल लाइन पे कहीं पे है, ये रियल लाइन पे मान लो इधर है, इधर 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 है, राइट। तो जब ये लेस देन इक्वल टू के है और दूसरे साइड से सारे के डैश वगैरह वगैरह, तो अगर मैं यहाँ का इन्फिमम लूं या यहाँ का सुप्रीमम लूं तो वो सेम होने चाहिए बाय डेडिकेंट कट्स। मेरी बात समझ में आई? मेरे का मतलब है एक बाउंड्री है, यहाँ सारे लाई करते हैं इस साइड पे, बाकी सारे लाइट करते हैं इस साइड पे। मैं कह रहा हूँ ये जो इन्फिमम है इस सेट का वो इसके सुप्रीमम है ना। तो इसका मतलब इन्फिमम शुड बी एक्चुअली इक्वल टू सुप्रीमम ओवर नॉर्म एक्स इक्वल टू 1 टी एक्स। हम इस तरह से भी इस नॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या पता चला, ये जो ये नंबर्स हैं इनका जो सबसे छोटा भाई होगा वो होगा नॉर्म ऑफ टी। यानी इन नंबर्स का इन्फिमम क्या है, यानी अगर, मेरे कहने का मतलब है अगर तुम्हें अब कोई कहे टी ऑफ एक्स जो है इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स, ठीक है ना, तो तुम कहोगे ये जितने भी के है ना उनमें सबसे छोटा भाई है ना, इन्फिमम क्या है, सुप्रीमम है इस साइड का, तो वो है नॉर्म ऑफ टी, है ना। यानी तुम कहोगे फिर ये जो नॉर्म ऑफ टी होगा वो इन केस में सबसे छोटा होगा, यानी या तो वो इस केस से छोटा होगा या इसके बराबर। तो सो आई कैन एक्चुअली रिप्लेस, यानी फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। मैंने इन सब में सबसे छोटा लिखा, मतलब ये याद रख लो। यानी मैं इस के को रिप्लेस कर सकता हूँ बाय दिस नॉर्म टी, क्योंकि वो नॉर्म टी जो है वो इन केस जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उनका सबसे इन्फिमम है, वो भी उसी साइड पे लाई करेगा। यानी यू रिमेंबर दैट फॉर अ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ऐसा है तो दिस वुड इंप्लाई दिस एंड साथ में। So you've got norm of tx is less than equal to norm of, for a bounded linear transformation t from x to y, this is always, this is just a non-negative number, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो हमने ये देखा कि इसका जो यहाँ से सुप्रीमम आएगा वो इस इन्फिमम के सेम होगा बिकॉज ऑफ डेडिकेट कट्स of real numbers, so then this must be true for all x belonging to x. एक और जो important, इसको मैंने बॉक्स कर दिया, ये important है। अब एक और चीज है कि हमने ये तो दिखा दिया कि बी एक्स वाई जो है इज ए नॉर्मल स्पेस। गुड। अब सवाल ये है ये बानाक स्पेस है ना, जैसे सभी जो हमने एग्जांपल्स की, नेक्स्ट क्वेश्चन होता था ना जो हमने अब तक किए एग्जांपल्स ऑफ नॉर्म, क्या ये कंप्लीट है? और मुझे लगता है आज के लिए काफी हो गया, ये हम कल करेंगे। जी सर, और एक क्वेश्चन है कि ये खाली एक ही नॉर्म इस पे हम डिफाइन कर सकते हैं बहुत सारे? किस पे? जैसे हम करते थे आर एन पे, हमने किए थे बहुत सारे इक्विवेलेंट नॉर्म या बाकी नॉर्म किए थे डिफाइन। बोल रहा हूँ इसके लिए कितने नॉर्म्स हम डिफाइन कर किस सकते पे? हैं? बी एक्स वाई पे? हाँ सर, खाली यही एक? नहीं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर नॉर्म। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर नॉर्म। ये तो हमेशा होगा, मतलब ये हमेशा होगा जब एक्स एंड वाई नॉर्मल लीनियर स्पेस हो, ठीक है? ठीक है। अब देखो जो भी हमने किया ना डिफरेंट नॉर्म्स डिफाइन चीजों पे, वहां ऑलरेडी हमारे पास स्पेस थी एज ए कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। मतलब जैसे हमने किया था कंटिन्यूअस फंक्शंस, जैसे हमने किया था सीक्वेंसेस, जैसे हमने किया था एन टपल्स। इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता है जब तुम कहोगे अगर मैं x को ये स्पेस लेता हूं, y को ये स्पेस ले सकता हूं, तो bxy पे हम कौन कौन सा नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। मतलब उसके लिए हमें क्लियर होना चाहिए पहले x एंड y है क्या। यहाँ पे x एंड y जो हमने डिफाइन किया ना, x एंड y कुड बी एनी नॉर्मल लीनियर स्पेस। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। मैं कह रहा हूँ कि जिन पे हमने डिफरेंट नॉर्म्स डिफाइन किए थे ना, वो कॉन्क्रीट एग्जांपल्स थे नॉर्मल लीनियर स्पेस की। यहाँ पे ये एग्जांपल नहीं है कोई नॉर्मल लीनियर स्पेस की। x इज एनी नॉर्मल लीनियर स्पेस, y इज एनी नॉर्मल लीनियर स्पेस। लेकिन अब अगर तुम मुझे बता दो चलो x अगर L1 है, y अगर L infinity है,
तो फिर हमें फिर पहले bxy को इवेलुएट कर, वो क्या स्पेस बनेगी, फिर हम चेक करेंगे कि क्या उस पे ऑफ कोर्स उस पे डिफरेंट नॉर्म्स डिफाइन हो सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कब होंगे कैसे होंगे ये डिपेंड करेगा तुमने x क्या चूज किया, x and y क्या चूज किया, क्योंकि जब हम वहां नॉर्म्स डिफरेंट देते थे वहां हमने x कुछ लिया था पहले, हमने लिया था एंटरपोज, नंबर्स लिए थे, फंक्शंस लिए थे, सीक्वेंसेस लिए थे। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ सर। ओके, सो लेट्स एंड इट हियर। ओके, खुदा हाफिज़।